Hello YouTubers, welcome back to the Indian Gadget Show. Today we will be discussing which is the best laptop for every individual. Yes, you heard right. I'm gonna review two laptops here. These two laptops will serve needs of every individual, and at the end of the video I will tell you the secret of buying at a discounted rate. So stay tuned for that. But before I start, I would request you to hit that subscribe button down there to get an amazing gadget related, technology related videos right to your mobile. So without further ado, let's get started. So laptop is an essential gadget for every individual, whether you are a teacher, whether you're a student, or you are just a corporate guy, or you have your own business. No matter what you do, you need a laptop. We all wish our laptop should be powerful enough to carry out all the tasks that we wish to. देखो दोस्तों, डेस्कटॉप तो वैसे भी पावरफुल होते हैं, but we all wants a laptop to at least match up a performance near about what desktop gives to us. And अगर लैपटॉप आपको डेस्कटॉप की जैसा परफॉर्मेंस देने लगे तो ये आपके लिए तो सोने पे सुहागा ठहरा जाएगा. So in today's technological era, nowadays a laptop to matching performance with the desktop, and I feel that's amazing. In this video, I have specifically going to speak about the powerful laptop that will serve the hunger of every individual. So stay tuned for that. So these shortlisted laptops are from HP Omen 15. If I talk about the model number, those are EN0036AX and 37AX. If you have not heard about Omen series, then let me tell you. Omen series specifically designed to satisfy the hunger of gamers. So आप सोच रहे होंगे यार ये तो सिर्फ गेमिंग लैपटॉप है. नहीं, hold on. It's just not a gaming laptop. I will prove my point as we discuss more about it. The main objective of Omen series to deliver a performance. Gamers के लिए तो क्या हुआ? What a gamers require is nothing but the performance in the laptop. आजकल गेम ही इतने ग्राफिक्स एंड परफॉर्मेंस हेवी होने लगे तो उसको रन करने वाली मशीन भी पावरफुल होनी चाहिए. So अगर गेमिंग लैपटॉप है तो आपको बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा. Now let's look at the specification of these two laptops in the details. If I talk about the CPU, these two laptop contains two most powerful CPU that is right now available in the market. अगर आप गेमर हो या स्टूडेंट हो या डेवलपर या और बिजनेस पर्सन, आपको तो पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत है ही. So in these two laptop, what you get is AMD's 4th gen Ryzen CPU, which is very powerful and most appreciated CPUs from the tech industry. So these CPUs are Ryzen 5 4600H and Ryzen 7 4800H. So let's talk about the first one, that is Ryzen 5 4600H. Ryzen 5 4600H is a hexa-core CPU, guys, which means you will get 6 cores and 12 threads. So if you are a college student or business person, this is perfect CPU for you. आपको 6 cores and 12 threads multitasking के लिए sufficient है. अगर मैं क्लॉक स्पीड की बात करूं तो इट वेरीज फ्रॉम 3 GHz टू 4 GHz तक ये वेरी होता है. अगर आप क्लॉक स्पीड क्या होता है ये आपको पता नहीं है तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस. इट जस्ट अ CPU परफॉर्मेंस इंडिकेटर. इट स्टेट्स हाउ रैपिडली योर CPU प्रोसेसर डेटा. अ हायर फ्रीक्वेंसी सजेस्ट अ बेटर परफॉर्मेंस इन CPU ओरिएंटेड टास्क. सो क्लॉक स्पीड भी अच्छा है इस CPU का. इन अ सेकंड लैपटॉप व्हाट यू गेट इज अ बिग ब्रदर ऑफ Ryzen 5. दैट्स राइट, इट्स अ Ryzen 7 4800H. इट्स अ octa-core CPU guys, which means you will get 8 cores and 16 threads. मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट लैपटॉप है ये. अगर आप रिसर्चर हो और कंटेंट क्रिएटर एंड आपको जो 2 एक्स्ट्रा कोर्स है उसकी जरूरत है, देन दिस इज द CPU फॉर यू. अगर क्लॉक स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये 2.9 GHz से 4.2 GHz तक वेरी करता है. वी शुडंट बी वरिंग अबाउट द क्लॉक स्पीड एज इट इज अ गुड. अगर आप IT प्रोफेशनल हो एंड यू आर इन्वॉल्व इनटू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट नॉट, देन दिस इज द वन यू शुड लुक फॉर. मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे CPU चॉइस से खुश नहीं होंगे एज आई हैव नॉट सजेस्टेड अ लैपटॉप विद Intel CPU here. Of course there are reasons for that. As a consumer, what matters to me is a price to performance ratio. AMD provides me a very good price to performance ratio. अगर मैं बात करूं 4th gen AMD प्रोसेसर की तो Ryzen 5 4600H जो entry level AMD का CPU है guys, can beat Intel i7 10750H, which is not at all entry level CPU from Intel. If you look at the report from the TechSpot, R5 is ahead of all the benchmarks. अगर Cinebench R20 की मैं बात करूं तो R5 is 27% faster than Intel i7 10750H in multi थ्रेडिंग. ये दोनों हेक्सा कोर CPU है गाइस, तभी भी मल्टी कोर परफॉर्मेंस में AMD Intel से भी आगे है. अगर हैंड ब्रेक जो वीडियो एनकोडिंग सॉफ्टवेयर है, अगर वहां पे मैं परफॉर्मेंस चेक करूं तो वहां पे भी Ryzen 5 विंस अगेंस्ट Intel के i7 10750H. अंडरस्टैंड दिस गाइस, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट Ryzen 7 which is a big brother of Ryzen 5. तो उसका तो परफॉर्मेंस Ryzen 5 से भी बेहतरीन है. स्टैट नेवर लाइज गाइस. आंकड़े मुझे यही बताते हैं कि AMD परफॉर्मेंस इज बेटर देन Intel का परफॉर्मेंस. सो मैं वही आपको रेकमेंड करूंगा जो उसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है. So in conclusion, what I have to say is these two CPUs are best performance CPUs in the market. We compared with Intel also and we found out they are better than Intel's 10th gen i7 10750H CPU. Now let's look at the GPU of these two laptops. After CPU, I tends to give more importance to GPU. In fact, CPU GPU combination matters to me a lot as these are mostly responsible for performance of your laptop. So we have two GPU options here. In EN0036AX model, what we have is GTX 1660
1660 Ti and EN0037AX model what we get is RTX 2060. Now both GPU are from two different lineups. One is from GTX 16 series and another is from RTX series of Nvidia. Now let's focus on first one. The 1660 Ti is termed as one of the best graphics card in median budget segment. It currently runs almost all games on 1080p. So gaming wise this is a good GPU. You will get 6 GB of VRAM with this GPU. If I talk about the clock speed, that it varies from 1500 MHz to 750 MHz. जो रिसर्च फील्ड में काम करते हैं उनके लिए CUDA कोर्स उसका जो काउंट होता है that matters a lot. तो आपको इसके साथ 1536 CUDA कोर्स का काउंट देखने को मिलता है. ये GPU गेमिंग as well as other graphics heavy softwares के लिए फायदेमंद है. Now let's talk about RTX GPU. The second laptop that is EN0037AX is equipped with RTX 2060, which is an entry-level RTX graphics card from Nvidia. If 1660 Ti allows you to game at 1080p, then RTX 2060 will push even little further and will allow you to game at 1440p with a good performance of. RTX card is a favorite of many as it supports a ray tracing feature. जिनको मालूम नहीं what is a ray tracing उनके लिए बताना चाहूंगा कि गेम की डिटेलिंग ग्राफिक्स हमें देखने को मिलती है, like shadow, reflection. I will call it as a more realistic graphics. So उसको एक नया टर्म दिया है ray tracing from Nvidia. So this GPU is not only famous in gamer circle but also famous in researcher group. All thanks it supports to the Tensor cores. So VRAM की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ आपको 6 GB की VRAM देखने को मिलेगी. क्लॉक स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो it varies from 1365 to 1680 MHz and CUDA कोर्स का काउंट अगर देखा जाए तो 1920 है with RTX 2060. देखो गाइस समझो GTX and RTX कार्ड में प्राइस का डिफरेंस अच्छी तरह से देखने को मिलेगा. GTX कार्ड थोड़े सस्ते होते हैं RTX कार्ड से. So I have always suggested people कि अगर आप RTX कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, बजट का कुछ कंसर्न है तो एटलीस्ट आप GTX 1660 Ti तो खरीद लो. प्राइस कंपैरिजन करूँ तो RTX 2060 as I said कि कॉस्टलियर देन GTX 1660 Ti GPU. बट आपका एम सिर्फ गेमिंग करना है तो GTX 1660 Ti इज इनफ. बट अगर आपको कुछ प्रोफेशनल ग्राफिक्स हेवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फील्ड में काम करना चाहते हो तो आपको RTX सीरीज की तरफ देखना चाहिए. जो RTX 2060 वाला जो एंट्री लेवल का GPU है उसकी तरफ आपको देखना चाहिए, वो ले सकते. बहुत लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले आई मीन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिस्प्ले मैटर्स नहीं करता as long as everything looks good on a screen. But there are people like content creators who works mainly on graphics related stuff. They do wish to have a good quality of display in their laptops. And good news is ये लैपटॉप उनके लिए भी सुटेबल है. अगर डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ तो आपको इन दोनों लैपटॉप में सेम क्वालिटी एंड सेम स्पेसिफिकेशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा. अगर डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो आपको 15.6 फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगा. एंटी ग्लेयर से आपका व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बढ़िया होते हैं दोस्तों इन ब्राइट सनलाइट ऑफ कोर्स. तो आपको आउटडोर में अगर इसको यूज करना है तो एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी का बहुत ही आपको फायदा होगा. अगर रिफ्रेश रेट की अगर बात करूँ तो आपको इस लैपटॉप के साथ बाय डिफॉल्ट 144 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिलेगी. अगर कलर गैमेट्स की बात करूँ, आप उसकी स्पेक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको 100% sRGB का सपोर्ट है, 72% NTSC का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा. अगर ब्राइटनेस की बात करो तो 300 निट्स का ब्राइटनेस आपको इस लैपटॉप के साथ देखने को मिलता है. काफी अच्छा है, आप आउटडोर में बड़े आराम से काम कर पाओगे. अगर पिक्सल डेंसिटी की बात करूँ तो आपको 141 पिक्सल की PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी इस लैपटॉप के साथ. सो ओवरऑल डिस्प्ले इज रियली गुड. अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हो और आपको डिस्प्ले व्यूइंग एंगल सब मैटर्स करता है तो तभी भी आपको इस लैपटॉप के साथ जाने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि बहुत ही अच्छा लैपटॉप का डिस्प्ले आपको मिलता है इस रेंज में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैम एंड स्टोरेज. इन द बोथ द लैपटॉप्स रैम इज बाय डिफॉल्ट आपको 16 GB की देखने को मिलेगी. इफ आई टॉक अबाउट रैम फ्रीक्वेंसी देन इट इज 3200 MHz. मैक्स रैम अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि एक 16 GB तक ही सपोर्ट करती है ऑफिशियली. बट अनऑफिशियली मैंने बहुत सारे फोरम पे रिसर्च किया, रीड किया आर्टिकल्स को, आप 32 GB तक आप इसको एक्सटेंड कर पाओगे. बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू 16 GB इज मोर देन इनफ फॉर द मोस्ट ऑफ द थिंग्स टुडे. इफ आई टॉक अबाउट SSD, you will get a 512 GB of PCIe M.2 NVMe SSD with GTX 1660 Ti model and 1 TB of SSD with RTX 2060 model. Believe me guys, this is the fastest SSD I ever seen it. आपको स्पीड भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा इन फाइल ट्रांसफर काइंड ऑफ ऑपरेशन. SSD आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसके लिए आप एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है लैपटॉप के अंदर. अगर हार्ड ड्राइव की मैं बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट आपको इस लैपटॉप के साथ कोई हार्ड ड्राइव का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा as it has become new norm in 2020 not to provide a hard drive along with the laptop. But actually it's a not deal breaker for me. आप एक्सटर्नल भी खरीद सकते हो गाइस. देखो गाइस क्यों करते हैं मैन्युफैक्चरर ऐसा, ये बात समझनी पड़ेगी. अगर लैपटॉप हार्ड ड्राइव नहीं है तो थोड़ा स्लिम हो जाता है, उसका वेट भी कम होता है, पोर्टेबिलिटी के लिए आसान भी होता है. प्लस लैपटॉप की बैटरी की कैपेसिटी की जो स्पेस है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है. तो आपकी लैपटॉप की बैटरी होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, कैपेसिटी भी उसकी एक्सटेंड हो जाती है. तो आपके लिए ये भी
ब्लिस है। और हार्ड ड्राइव SSD की कारण आपको हार्ड ड्राइव की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, और प्लस अगर कंज्यूमर चाहे तो आप एक्सटर्नल भी खरीद सकते हो। तो इसी के कारण नाउअडेज कंपनी हार्ड ड्राइव देने में थोड़ी परेशानियों में होती है, वो नहीं देती है कंज्यूमर्स को हार्ड ड्राइव। बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर फॉर गाइज, क्योंकि आप एक्सटर्नल भी खरीद सकते हो और बाकी फायदे आपको हार्ड ड्राइव में नहीं है, इसके कारण आपको मिल ही रहे। अगर पोर्ट्स की बात करूं तो दोनों लैपटॉप में आपको सेम पोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगी। सो इन द बोथ द लैपटॉप यू विल गेट 1 टाइप C पोर्ट्स, टोटल 3 टाइप A पोर्ट्स, HDMI 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, RJ45 का सपोर्ट भी है गाइज, 1 हेडफोन और माइक्रोफोन जैक भी आपको देखने को मिलता है, कार्ड रीडर का भी सपोर्ट है। ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि डायरेक्टली DSLR से अगर मैं कुछ फोटोज या वीडियोज लेना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली मेमोरी कार्ड लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करके वो मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ये फीचर बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न लैपटॉप्स में जो भी पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो सभी पोर्ट्स आपको इन दोनों लैपटॉप्स में देखने को मिलेंगे। सो पोर्ट्स के मामले में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए गाइस। लेट्स टॉक अबाउट द थर्मल परफॉर्मेंसेस ऑफ दीज टू लैपटॉप्स। देखो गाइस, यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। दीज टू लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद पावरफुल CPU एंड GPU कॉम्बिनेशन, तो ये हीट तो जनरेट करेंगे ही, नो इश्यूज विद दैट, क्योंकि सभी लैपटॉप हीट्स प्रोड्यूस करते हैं। बट फ्रॉम वेयर आई सी, बेस्ट लैपटॉप इज द वन व्हिच हैंडल्स द जनरेटेड heat effectively. Believe me guys, HP Omen 15 has one of the best thermal system installed in their laptops. You will see the proper air ventilation system plus installed IR thermophile sensor which sense the temperature and controls the cooling fans accordingly. You will get 2 cooling fans, one is for CPU and is another from is for GPU. With these 2 laptops, back side पे भी कोई ports नहीं दिखने को मिलेगा. It has a complete grill for air to flow out and bottom panel पे भी एक ventilation mesh दिया गया है which is a quite good. I always suggest for gamers to look for what kind of thermal system company has installed in it for prior to purchasing their laptop, as it is a very much important. अगर आपका लैपटॉप हीट को अच्छी तरह से कंट्रोल करेगा तो आपको कभी भी परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिलेगा. So make sure that you check the thermal system before you buy any laptop guys. Now let's talk about the miscellaneous features. I always talk about the miscellaneous feature guys as I add some micro feature in this list which may or may not be useful for everybody, but as I told you I'm gonna give you in depth review, so I wish to add these miscellaneous feature in the list. So अगर वेट की मैं बात करूँ तो इसके ये दोनों लैपटॉप का वेट सेम ही है, 2.37 kg, काइंड ऑफ लाइट वेट, इट डज नॉट फील हैवी. अगर कीबोर्ड की मैं बात करता हूँ तो 4 जोन RGB कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, प्लस एंटी घोस्टिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज इन्होंने किया गया है. बैटरी की अगर बात करूँ तो 6 सेल की बैटरी है, 17.9 वैट आवर की बैटरी आपको देखने को मिलेगी. बैकअप आपको 4 आवर्स को देखने को मिलेगा. और प्रोडक्टिविटी ऑफकोर्स अगर आप गेमिंग करोगे तो आपको 1 to 2 आवर्स का बैकअप गेमिंग में आपको देखने को मिलेगा. बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू प्लग एंड प्ले, क्योंकि गेम्स पावर हंग्री होते हैं. आपको परफॉर्मेंस अगर अच्छा चाहिए तो प्लीज प्लग एंड प्ले. अगर साउंड की बात करो तो 2 वैट के ड्यूअल स्पीकर आपको बैग एंड उल्फनसन के देखने को मिलेंगे. डिसेंट है, मूवी वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक ठाक है. Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट है, इसके साथ Bluetooth 5 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है. अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इट हैज अ मेटेलिक चेसी. व्हेन आई सी द मेटेलिक चेसी देन टेक एंड स्क्रीन आपको मेटेलिक बिल्ड के देखने को मिलेगी. थोड़ा स्क्रीन में फ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा. अगर बॉटम पैनल की मैं बात करूँ तो वो कंप्लीटली प्लास्टिक का बनाया गया है. सो इसके साथ आपको एक हाइब्रिड चेसी आपको देखने को मिलती है. तो इट्स नॉट डील ब्रेकर फॉर मी, क्योंकि बॉटम में इतना कुछ आप यूटिलाइज नहीं करते. लेकिन अगर डेक की बात करो और स्क्रीन की बात करूँ तो इट इज अ कंप्लीटली मेटेलिक चेसी गाइस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस 2 लैपटॉप, देयर प्राइसेस. अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो EN0037AX आपको 1.25 लाख में मिलेगा. अगर EN0036AX की मैं बात करता हूँ तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,05,000 रुपीज. प्राइस इज ऑन स्पॉट गाइज. अगर इंटेल के मॉडल इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मैं देखूं, ओमेन की ही मैं बात करूं तो उनकी प्राइस अराउंड 1.5 लाख के करीब आपको देखने को मिलेगी. सो इट इज वेरी गुड डील एज कम्पेयर टू द इंटेल. तो प्राइस में बहुत ही अच्छे प्राइस इफेक्टिव है गाइज ये लैपटॉप्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई थिंक अबाउट दिस 2 लैपटॉप्स. कॉन्फिग वाइज दे आर पावर पैक्ड. CPU GPU combination is very good. You have all the ports with these 2 laptops. Thermal system is also top notch. If we talk about the build quality, it's premium guys, and most importantly it caters all category of people or all category of laptop buyers. Let's understand how, but let me first categorize consumers in following category. एक कैटेगरी में बनाऊंगा गेमर्स की, दूसरी कैटेगरी में बनाऊंगा स्टूडेंट्स की, तीसरी कैटेगरी में बनाऊंगा डेवलपर्स की, एंड चौथी कैटेगरी में बनाऊंगा कंटेंट क्रिएटर्स की, एंड पांचवी लास्ट भी बिजनेस पीपल की. If I talk about the gamers, what they need is good CPU and GPU combination and good thermal system. These 2 things check. For student, what matters most is portability and good CPU for multitask. These 2 things also check. For developers, good CPU GPU combination and sufficient RAM and storage matters a most. This is also comes with these 2 laptops. For the content creators, what we
need is good quality of display and CPU performance too. That these two things are already with this laptop as well. For the business people, what I feel is the portability, battery capacity and sufficient RAM and storage matter the most. These things are already there, so this is also checked. और क्या चाहिए दोस्तों, सबसे ऑलराउंडर लैपटॉप मैं कहूंगा जो HP की तरफ से देखने को हमें मिलता है. Irrespective your job, profession or whatnot, these two laptops will serve your needs. At last, from where you will purchase these two laptops? These two laptops comes with very limited stock guys and get out of stock very quick. This is the pandemic situation which has already worstly affected the supply chain and manufacturing process. So आपको Amazon और Flipkart पे में मिलेंगे, मैं लिंक अगर मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके चेक करना. अगर अवेलेबल है तो खरीद लो, अगर अवेलेबल नहीं है तो what I would suggest is buy it directly from HP. You contact this number, मैं स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, and speak for availability and also mention that you need to pre-book this laptop. What is the process for that? They will tell you a process for pre-booking process. Now you can get even more discount if you purchase this laptop on students name. घर में कोई स्टूडेंट है या बाजू वाले का कोई बंदा स्कूल में जा रहा है, किधर आपको कॉलेज में जा रहा था, उसके नाम पे आप ये लैपटॉप ले सकते हो. वहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट ऑन द स्पॉट मिलेगा. मुझे भी मिला है, मैंने खुद इस लैपटॉप के साथ 5% का डिस्काउंट रिडीम किया है. और कुछ नहीं दोस्तों, आपको एजुकेट करना चाहता था. आई एम वेरी स्मॉल यूट्यूबर, so this laptop has not been sponsored by HP or nor any third party sponsor. So if you have any sort of doubt, please comment it. I will give answer to all sort of your questions. So start commenting and please support me guys for creating in-depth videos. Now it's time for me to say bye bye to you. Jai Hind दोस्तों.